स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Okay, good afternoon, guys. I'm sorry, my apologies. Normally, orientation session में सबसे पहला word ये होता है मेरा, because the sessions of orientations are different from the times, different from the scheduled time of our class. Because normally 12 बजे class रहती है, although आज 12 बजे मेरी class है नहीं, because the new batch will be starting from Monday. Orientation session 11 या 11:30 होती है. So this is the first session, and I request all of the people who are going to watch this session recorded because of the lack of information with respect to this session's timing. Please watch this session very carefully if you really want to make the most out of the entire course. If you really want to take out all the juices of this particular course here. So first of all, I warmly welcome you all with respect to Sociology batch of Study IQ, July batch specifically. So today is 3rd July. Orientation session. There are two things. The session would be roughly for 25 to 30 minutes. In this session, we'll be discussing about notes कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या पढ़ना है, मेरे कमिटमेंट्स आपसे क्या है और आपके कमिटमेंट्स मैं क्या चाहता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज सोशियोलॉजी देयर आर some sort of dedication which I really desire from you all. The benefits of this would be to you, not to me. First of all, let me talk about Karam Yogi Divakar Bothra's commitment. मेरी तरफ से आपको क्या क्या कमिटेड है इस पर्टिकुलर बैच में या फिर थ्रू आउट द बैच और बियॉन्ड द बैच एज वेल. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी वुड बी कवरिंग द एंटायर सिलेबस. आपने शेड्यूल सिलेबस का ऑलरेडी देख लिया होगा. जब एडमिशन लिया होगा तो एक पीडीएफ आता है कैसे कैसे प्रोग्रेस होगी. Every subtopic would be covered in the class. Rest assured of that. How to verify that? Yes, we'll come to that. You can verify by yourself on day-to-day basis as we progress with the classes. Second thing, what would be the timing of the class? 12 to 3 is the scheduled time. Normally, I wind up the class at 2:30 p.m. Okay, no breaks in between, and those 2.5 hours would just look like few minutes. I assure you on that. So timings would be every day 12 to 3, and the days would be Monday to Friday. Normally Monday to Friday class hogi, Saturday Sundays would be off, and the timing would remain this. Now, what are the various deliverables which I have promised to you being a part of Study IQ? As a student, with respect to the notes, you will be getting three things. First one is PPT. Second one is Crux. And third one is handwritten notes. Normally, I don't teach through PPT. This is how we would be learning in the classes. That is, जब लिख के पढ़ेंगे, बोर्ड से पढ़ेंगे, PPT से नहीं. अब फिर भी आपको स्टडी IQ एक PPTs दे देता है क्लासेस की. एवरी डे जो टॉपिक होगा उसकी PPT अपलोड हो जाया करेगी. आपकी चॉइस है तो आप इस PPT को गो थ्रू करें, नहीं करेंगे तो कोई बहुत बड़ी चैलेंजिंग एस्पेक्ट नहीं है. मैंने इनमें से कोई सी भी PPT पर्सनली नहीं बनाई है बिकॉज आई एम नॉट अ टाइप ऑफ PPT पर्सन. अब कंटेंट डेवलपर्स और बैक एंड जो हमारे सोशियोलॉजी के टीम को सपोर्ट करते हैं, दीज आर द पीपल हु एक्चुअली मेक द PPT इन ऑर्डर टू गिव यू सर्टेन एक्स्ट्रा कंटेंट. सो इफ यू वांट यू कैन गो एंड रीड द PPTs. Personally, I don't make PPTs, so पढ़ना है आपकी चॉइस है, but obviously this should not be a base. PPTs cannot be a base as such. Second है Crux. ये मेरे पर्सनली बनाए हुए हैं 99% ऑफ इट. कभी कभार 1% जब मैं आर्टिकल सेंड कर देता हूँ वो अपडेट कर देते हैं उसके अंदर. पूरा क्रक्स टाइप्ड है, पर्सनली मैंने टाइप किया है एक टाइम के अंदर. क्रक्स कंसिस्ट ऑफ all the topics taken out from the most renowned sources, reference books.
चाहे वो हरलम्बस हो, रिट्जर हो, बीए इग्नो हो, एमए इग्नो हो, निस्बेट हो, एंथनी गिडन्स हो, बेतले हो, सोशल चेंज इन एमएन श्रीनिवास हो, व्हाटएवर इट इज। यहाँ पे टॉपिक वाइज में वो कंटेंट दिया हुआ है जो ओरिजिनल सोर्सेज में है, उसकी कभी मैंने मेरी भाषा में आसान करने के लिए लिखा, और कई बार एज इट इज पैरास डास कैपिटल से या प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटल इकोनॉमिक्स एंड रिलीजन से बोरो करके लिखे हुए हैं। अब इस क्रक्स को भी तुम्हें बेस नहीं बनाना है, दिस शुड बी यूज्ड ओनली एज अ रेफरेंस सोर्स। मान लो आज से 3-4 महीने के बाद में, आप 5-6 महीने के बाद में जब बैच खत्म हो जाए, फिर अब अगले साल से अगले साल एग्जाम देना पड़ जाए, थोड़ी थोड़ी चीजें धुंधली हो जाएगी। हो सकता है उस टाइम आपके पास एक्सेस नहीं रहे रिकॉर्डेड क्लास का, ये और रहे भी तो फिर वो 2.5 घंटे के वीडियोस देखने सेंस नहीं बनते हैं। उस टाइम में रेफरेंस सोर्स के ऊपर आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट मोर कंटेंट। आई एम सॉरी। सेकंड, मान लो हमने कोई चीज डिस्कस की, एक्सट्रीम लेवल की डेप्थ पे होगा, इनफैक्ट क्रक्स से भी ज्यादा डेप्थ पे हम डिस्कस करेंगे जब चीजें डिस्कस करेंगे, बट येट 2-3 महीने के बाद या इमीडिएटली थोड़ा सा और चीज उसके ऊपर जानना है, तो यू कैन स्टडी दिस। सो लेट्स बी क्लियर, ये रेफरेंस सोर्स बेस नहीं बनती है, वो सिर्फ कंटेंट को बिल्डअप करने के लिए काम आती है। तो पहले फाउंडेशन किसी और चीज की होती है, उसको बिल्ड किया जाता है रेफरेंस सोर्सेस से, किताबों से। सो जस्ट यूज इट whenever you feel that certain need or adequacies exist। आपका जो बेस मटेरियल होगा वो होगा हैंड रिटन नोट्स। अब हैंड रिटन नोट्स क्या होते हैं? हर चैप्टर की पहली क्लास जो होगी, हर चैप्टर की पहली क्लास के अंदर एंटायर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स अपलोडेड हो जाएंगे। पहली चीज ये अच्छे से समझ ले। कल मंडे से फिर आप अगर पूछोगे सर कहाँ मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, तो उस टाइम मेरा आंसर नेगेटिव में रहेगा, बिकॉज ओरिएंटेशन सेशन आपके वेलबींग के लिए ली जा रही है गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड। हर चैप्टर की पहली क्लास में पूरा उस चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स एक साथ मिल जाएगा। पहले क्या होते थे, हम टॉपिक वाइज देते थे, बट आई वांटेड टू चेंज दिस, कि बच्चे को पूरा हैंड रिटन नोट एक साथ मिल जाए, ताकि बार बार जेरोक्स शॉप के चक्कर नहीं काटने पड़े, हर दिन जाके करो या एक हफ्ते तक वेट करो। एक ही बार में अगर प्रिंट आउट निकालना है प्रिंट आउट निकाल लो, अगर सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना है दैट रिमेन्स योर चॉइस। जब लेक्चर चलेंगे और आपके सामने ये सारी चीजें होगी, तो चीजों के अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। सो द हैंड रिटन नोट्स वुड बी अपलोडेड and you will understand the mesmerizing quality of this notes on Monday when you get the notes। हर चैप्टर के पहले में होगी और पूरा चैप्टर तक वो नोट्स रहेगा, और उसके बाद सेकंड चैप्टर के अंदर यू विल गेट इट अपलोडेड। अब होता क्या है, सोशियोलॉजी में कांस्टेंट अपडेट होती है चीजें। लास्ट बैच से ये मैंने पैटर्न चेंज किया था। इस हैंड रिटन नोट्स के साथ मान लो इसमें 15 पॉइंट्स है, हो सकता है कोई मैंने आर्टिकल पढ़ा, कोई नया एनालिसिस आया, या कहीं से कुछ चीज नई ऐड हुई। मान लो 2 पॉइंट हमने क्लास में ऐड किए जो इस नोट्स में नहीं है, तो जो ये बोर्ड पूरी क्लास में यूज किया जाएगा, जो भी हम इधर लिखेंगे, जो भी हम इधर समझेंगे, इसकी भी इमीडिएटली आफ्टर क्लास आपको ये पीडीएफ या पीपीटी आपके जो रेस्पेक्टिव ऐप है, एक्सेस है, वहां पे अपलोड हो जाएगी। तो handwritten notes would cover 99% of your content whichever is being taught in your class। You don't have to go and writing। आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है। 1% जो एडिशंस होगा वो सारा बोर्ड के अंदर रहेगा, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ये हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए आपका बेस मटेरियल, नॉट ओनली बेस और फाउंडेशन। The quality and the depth of these notes is going to be so humongous, so huge, that आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक हफ्ते तक इस नोट्स को आराम से पढ़े जब आपको मिले। उसके बाद भी कोई सवाल रहे कि सर और कुछ पढ़ना है क्या, मैं आपके सारे सवाल को टैकल करूंगा, बट आई एम डेड श्योर ऑन इट। ठीक है, यू विल नॉट रिक्वायर इवन अ सिंगल वर्ड टू बी रेड। और सही टाइम पे बैच ज्वाइन किया हुआ आपका, क्यों? अगले महीने 20 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है मेंस। बाय एंड ऑफ द अगस्त सोशियोलॉजी के पेपर भी हो जाएंगे, तब तक आपके बहुत सारे एस्पेक्ट, इनफैक्ट बहुत अच्छा खासा कवरेज भी हो जाएगा सिलेबस, और आप मैच कर सकते हो कि 2026 में भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं 99% ऑफ दोस क्वेश्चंस वुड बी आंसर्ड। 1% ऊपर वाले पे होता है, आई कैन जस्ट बी एन हैंड।
अब 99% इस साल के भी क्वेश्चन अगर आपके नोट से निकल रहे हैं, देन नेसेसरीली देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग बियॉन्ड दैट. सो दीज आर द डिलीवरेबल्स विच यू विल गेट इट. अब सवाल आता है सर हैंडरिटन नोट्स मिलेंगे कहाँ? अब जब भी आप अपनी ऐप खोलोगे तो आपने देखा होगा डे है, लाइव क्लास है, लाइव क्लास पे क्लिक किया तो आपको 3 टैब खुलते हैं, ऐसे 3 या 4, प्लीज चेक कर लेना एक बार. एक में लिखा होगा पीपीटी, एक में लिखा होगा क्रक्स, या एक में कुछ और XYZ. अब हैंडरिटन नोट्स का कोई अलग से टैब नहीं है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं. नो टैब ऑफ हैंडरिटन नोट्स. तो सर मिलेगा कहां हैंडरिटन नोट्स? पीपीटी पे क्लिक करेंगे आप, एकदम स्क्रॉल करेंगे एंड तक, एंड में आपको अटैच्ड मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स. लेट्स बी क्लियर ऑन दैट. कंफ्यूजन नहीं करना है किसी को. पीपीटी वाले टैब पे क्लिक करें हर क्लास के अंदर. अब नॉर्मली हर क्लास में नहीं मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, पहली क्लास में ही चैप्टर में सारे पूरे चैप्टर का मिल चुका होगा, तो आगे वाले हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी आपके पास होंगे जब क्लास प्रोग्रेस हो रही होगी. तो पीपीटी क्लिक करके एकदम नीचे तक स्क्रॉल करोगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, हैंड रिटन नोट्स दिखाई देंगे. उसको डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करना प्रिंट आउट करें, अगर सॉफ्ट कॉपी रखनी है सॉफ्ट कॉपी रखें. अब एक मेरी एडवाइस है, जब भी आप इसे डाउनलोड कर रहे हो, प्रिंट आउट निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर इफ यू आर स्टडिंग इन अ सॉफ्ट कॉपी, कितने मैसेजेस ऐसे आए हैं 1.5 साल, 6 महीने, 5 महीने या कोर्स खत्म होने के बाद, एक्सेस इनवैलिड होने के बाद, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि सर मेरा सिस्टम करप्ट हो गया है, सारे हैंड रिटन नोट्स चले गए. इसके बाद में आपको फिर कुछ एक पर्टिकुलर फीस पे करनी पड़ेगी, एडमिशन लेना पड़ेगा, एक्सटेंशन लेना पड़ेगा. क्या सेंस बनता है? पहले दिन से अगर आप हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर रहे हो तो 2 कॉपीज रखा करो. एक अलग से पेन ड्राइव खरीद सकते हो, या जहां आपको क्लाउड या जिधर स्टोरेज करना है, 2 जगह अलग अलग टाइम पे स्टोरेज करके रखो, ताकि कल अगर सिस्टम में ब्रेकडाउन हो जाए, पेन ड्राइव खराब हो जाए, तो यू ऑलरेडी हैव अ कॉपी ऑफ इट. यू डोंट हैव टू पे एन एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट जस्ट टू गेट योर हैंड रिटन नोट्स. वो एक्सटेंशन के फिर 5-7 हजार रुपए दोगे, सेंस नहीं बनेगा उस चीज का. सो 2 कॉपीज मेरा रिकमेंडेशन है, आगे चॉइस आपकी है. अगर आप सो कॉन्फिडेंट हो कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है, देन नो प्रॉब्लम. प्रिंट आउट निकालने से कोई टेंशन ही नहीं है, बिकॉज आपके पास रहेगा हार्ड कॉपी में वो. अब ये थे सारे मेरे कमिटमेंट्स. अब आते हैं, आपको इस क्लास से सबसे ज्यादा यूटिलिटी निकालनी है तो क्या करना चाहिए. एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड, देयर आर 3 थिंग्स व्हिच यू शुड हैव ऑन योर टेबल ऑन मंडे व्हेन वी स्टार्ट आवर क्लासेस. क्लास में पेडागॉजी कैसी होगी उसका भी एक पॉइंट बाद में ऐड करूंगा. सबसे पहले आपके पास सिलेबस कॉपी होनी चाहिए. इनफैक्ट मैं रेकमेंड करूंगा एक प्रिंट आउट निकाल लो. अब कहां से निकालना ये मत पूछना यार. सोशियोलॉजी सिलेबस यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस टाइप करो, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, या फिर यूपीएससी का ही ओरिजिनल डाउनलोड कर लो, दैट्स गुड इनफ. एक कॉपी सिलेबस की होनी चाहिए. आप चाहो तो मल्टीपल कॉपीज रख के रखो, काम ही आएगी ये चीज. ये सिलेबस डाउनलोड करके आपके टेबल पे होना चाहिए जब भी आपको सोशियोलॉजी पढ़ो, या क्लास में अटेंड करो, या सेल्फ स्टडी करो. जो टॉपिक कवर हो जाए उस टॉपिक को हाईलाइट कर लो. मान लो पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन सोसाइटी, इंडोलॉजी हो गया, उसे हाईलाइट कर लो. फिर जाके अगर अगला टॉपिक हो गया उससे स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, या फिर मार्क्सिस्ट अप्रोच. जो जो टॉपिक कंप्लीट किया है प्लीज पर्सनली हाईलाइट करते चले जाना. इसका रीजन क्या है? पहली चीज, जब आप बार बार सिलेबस देखोगे तो आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी. और दूसरी चीज, जब आपने खुद के हाथों से हाईलाइट कर रखा होगा, सिर्फ चैप्टर नहीं सब टॉपिक्स, और सारे एक चैप्टर में सारे सब टॉपिक अगर खत्म हो जाए तो वो चैप्टर की हेडिंग हाईलाइट कर लेना. तो बाय द एंड ऑफ द सिलेबस, एंड ऑफ द क्लासेस, जब आप देखोगे और खुद के सारी चीजें हाईलाइटेड होगी, तो ये क्लियर है कि सर ने क्लास में हर सब टॉपिक कवर किया है, तभी मेरे पास जो सिलेबस है उसमें हाईलाइटेड है. नहीं तो हो सकता है मैं आपको झूठ बोल के चले जाऊं, हो गया है सिलेबस, हो गया है सिलेबस. नो, आप पर्सनली हाईलाइट करते चले जाओ. सो एट द एंड ऑफ द सेशन यू आर सेटिस्फाइड. क्योंकि आज से 6-7 महीने के बाद एक चैलेंज आएगा. कई बार, अरे यार ये कंटेंट का है सर, सिलेबस ये कवर नहीं हुआ. कितने मैसेज आते हैं आज भी ऐसे. फिर उन्हें बताता हूँ, देखो भाई ये चैप्टर में जाके देखो, ये सारी चीजें हैं. बोला यस सर, गॉट सर, गॉट द क्लासेस, गॉट द सिलेबस. 6 महीने के बाद आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, अरे यार ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक क्या है. बहुत सारे इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स है.
तो यू वुड एटलीस्ट बी श्योर, पहले सिलेबस चेक कर ले मिसिंग है क्या हाईलाइट, अच्छा हाईलाइट मिसिंग नहीं है तो इसी नोट्स में कहीं है, तो आप इजीली खोज सकते हो उससे अगर भूल गए हो तो। सो बी केयरफुल, सबसे पहली चीज सिलेबस, for your better understanding of sociology and also for your security, that you are genuinely psychologically emotionally satisfied at the end of the class, yes, the entire syllabus is completed because I have highlighted with my personal hands the entire syllabus. That means it has to be complete. Second is PYQ की किताब। अब सॉल्व खरीदो अनसॉल्व खरीदो, आपकी चॉइस है। पीवाईक्यू की टॉपिक वाइज किताब कोई खरीद सकते हो, मैं रेकमेंडेशन कोई नहीं दे रहा हूं सच। बहुत एक जेन्युइनली फेमस है अनसॉल्व्ड बुक, न्यू विशाल पब्लिकेशन की आती है, करीबन 150 रुपए की है। जो खरीदना है खरीदो यार, आपकी चॉइस है। कोई पीडीएफ आपको मिल जाए वो भी चलेगा। न्यू विशाल पब्लिकेशन का अनसॉल्व्ड बुक आता है, हर टॉप चैप्टर को टॉपिक वाइज से प्रीवियस क्वेश्चन जितने आए सब उसमें मेंशन है। बट जब खरीदते वक्त ये ध्यान रखेंगे लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए जिसके अंदर 2025 का मेंस का पेपर भी कवर्ड हो। 150 ये किताब आपके टेबल पे होनी चाहिए। इसके दो रीजंस है। पढ़ाते वक्त मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता हूं, बहुत सारे फ्रेम करता हूं क्वेश्चंस, ताकि आपको कंटेंट ज्यादा स्ट्रक्चर्ड मैनर में समझ में आए। अब पढ़ाने के बाद में आपका पहले दिन से दायित्व होना चाहिए कि मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाऊंगा। इंडोलॉजी अगर सर ने की है तो देखो भैया इंडोलॉजी में क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्लास की अंडरस्टैंडिंग और नोट्स की अंडरस्टैंडिंग से मैं क्वेश्चन लिख पा रही हूं या लिख पा रहा हूं, और अगर कोई दिक्कत आती है तो अगले दिन आके क्लास में आपने पूछ लिया कि सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया है, इसको अप्रोच कैसे करना है, या फिर इस चीज को मैं समझ नहीं पाया। सो बी केयरफुल, फ्रॉम डे वन यू स्टार्ट राइटिंग योर फर्स्ट आंसर। व्हेन आई से डे वन, पहला टॉपिक खत्म होने में, एक दिन में एक टॉपिक शायद नहीं होता है, बट येट जब एक सब टॉपिक कवर हो जाए उस टॉपिक पे आंसर लिखना है आपको। सो दिस पीवाईक्यू ऐसे करके अगर करोगे तो अगले 6 महीने में 200 से आंसर ज्यादा लिख चुके होंगे, बढ़िया से टेम्पलेट रहेंगे आपके पास, और बाई चांस कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप क्लास में पूछ सकते हो। दैट वुड हेल्प यू टू रिड्यूस योर बर्डन इन द लेटर फेज ऑफ योर प्रिपरेशंस। थर्ड वन इज A5 साइज की कोई भी एक अच्छी डायरी या नोटबुक, कुछ कुछ ऐसी सी दिखेगी, आपका जैसा मन है वैसे खरीद लो। जैसे इतने साइज की कोई भी नोटबुक खरीदोगे आप, A5 साइज, छोटी क्वालिटी वाली, पेपर क्वालिटी अच्छी हो, पीछे ब्लॉट नहीं हो रहा हो, पीछे ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा हो। प्लीज मेक श्योर, ये बहुत लॉन्ग टर्म तक काम आएगी जब तक आप सोशियोलॉजी से मेंस देंगे। इसको मैं बोलता हूं थिंकर्स बुक। अगर डे वन से नहीं किया आपने तो ये जीवन में कभी नहीं बना पाओगे। बाद में आलस कर दिया, खत्म हो गया ये गेम यहाँ पे। थिंकर्स बुक में करना क्या है, अब हम डेली जब सोशियोलॉजी क्लासेस लेंगे तो बहुत सारे थिंकर्स हैं जो हम यूज करते हैं। मान लो कास्ट पढ़ाते पढ़ाते हम मार्क्स पे कहीं आ गए, डरखाइम की कोई सॉलिडारिटी पे कुछ बोलने लगे, या फिर जाके कहीं पर्टिकुलर वुमेन वायलेंस का कुछ एग्जाम्पल आया या थिंकर आ गया, पेट्रियार्कल बार्गेन यूज कर लिया, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की यूज कर लिया। अब कई बार कनेक्शंस होते हैं और वो कनेक्शन से समझते हैं हम इश्यूज को। आपका गोल क्या है थिंकर्स बुक में? इसके नोट्स बनाने का रूल बड़ा सिंपल है, पढ़ने का रूल बड़ा सिंपल है। दो रूल्स याद रखें। मान लो ये किताब है, आपने थिंकर लिखा, मैक्स वेबर, आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी, 2 लाइन में मीनिंग लिखा, बात खत्म। अब चाहे हमने 1 घंटा डिस्कस किया हो इसको, आपको सिर्फ मीनिंग लिखना है। वेबर ने दिया, ये कॉन्सेप्ट है, ये इसका मीनिंग है। सेकंड, टोनिस, जिमाइनशेल्फ, जेसेलशैफ्ट, जिमाइनशैफ्ट एंड जेसेलशैफ्ट। जिमाइनशैफ्ट का मतलब क्या है, जेसेलशैफ्ट का मतलब क्या है, कुरविल क्या है, वेसनविल क्या है, मीनिंग लिखे, बात खत्म। इसी तरीके से जो भी थिंकर्स आए, चाहे एम एन श्रीनिवास आए, चाहे मिल्टन सिंगर आए, आप कंटिन्यूअसली लिखते चले जाओगे। पहली गलती आप लोग करोगे, ज्यादा समझदारी दिखा के वो क्या करोगे, इस किताब को डिवाइड कर दिया, 4 पन्ने कास्ट के, 5 पन्ने पेट्रियार्की के, 6 पन्ने स्ट्रैटिफिकेशन के, 7 पन्ने वुमेन वायलेंस के, 8 पन्ने कुछ मार्क्स के। ये जैसे डिवीजन किया, इससे बेटर है डस्टबिन में डाल दो उस किताब को, कोई सेंस नहीं बना तुम्हारा वो बना के। फ्लो के अंदर रनिंग नोट्स होने चाहिए। बाय द एंड ऑफ योर कोर्स यू वुड एटलीस्ट हैव 700 प्लस थिंकर्स इस किताब के अंदर। इस डायरी के अंदर 700 प्लस थिंकर्स होंगे, उनका थॉट या उनका कोटेशन कई बार होगा। इनकी सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके नोट्स में है।
लेकिन इस नोट्स में 700 थिंकर है। अब आपको करना क्या है डेली बेसिस पे, जैसे जैसे ये बिल्ड होता चले जाएगा, इसको डेली मॉर्निंग और नाइट 10-10 मिनट रीड करना है, याद रखें, स्टडी नहीं करना है। रीडिंग और स्टडिंग में डिफरेंस क्या है? व्हेनेवर यू स्टडी विद अ पर्पस, ये याद रखना है मुझे। रीडिंग क्या है? जस्ट ऐसे निकाला, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और कोई पेज वाइज नहीं चलोगी। आज आपने खोली, सडनली जो चीज समझ में आई आपने पढ़ना स्टार्ट कर दी, कल आप गए कुछ और निकला, वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 10 मिनट से ज्यादा डेली नहीं देना इसे। बनाने के बाद पढ़ने के लिए 10 मिनट। तो मेक अ पॉइंट, जो क्लास के अंदर थिंकर्स होंगे वो हैंड रिटन नोट्स में तो हैं, लेकिन आपको उन्हें अलग से सिर्फ थिंकर्स के बेसिस पे एक पर्टिकुलर मैटर बना लेना है, लाइफ लॉन्ग बुक बना लेनी है विथ रिस्पेक्ट टू एटलीस्ट योर सिविल सर्विसेज जर्नी। इधर से दो फायदे होंगे। सबसे पहला चैलेंज जो आता है, सर मेरे को थिंकर्स याद नहीं रहते, इसको छोड़ के कोई दूसरा याद करने का तरीका नहीं है। दूसरा, सर मुझे थिंकर्स तो समझ में आ रहा है लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं। कनेक्शंस कैसे होंगे? जब आप थिंकर्स बुक पढ़ेंगे, आज आपने चैप्टर खोला स्ट्रैटिफिकेशन के थिंकर्स है, कल आपने पढ़ा रिलीजन का, तो कल वो स्ट्रैटिफिकेशन के पढ़े हुए थिंकर्स ऑटोमेटिकली रिकॉल होने लगेंगे और रिलीजन से कनेक्ट होने लगेंगे। इस तरीके से कनेक्शंस पर्पसफुली बिल्ड किया जाता है। इफ यू कीप ऑन वेटिंग के जैसे जैसे पढ़ूंगा ऑटोमेटिकली कनेक्शंस होंगे, तो लेट्स बी वेरी क्लियर गाइस, इट्स अ यूटोपिया थॉट। ऑटोमेटिकली कोई कनेक्शन नहीं होता है। ऑटोमेटिकली भाई साहब, मार्क्स की कई भी प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन नहीं आई आज तक, तो ये कनेक्शंस कहां से आ जाएंगे? So this book is useful for knowing, developing those interconnected content and skills. And this book is useful for you to actually take care of the challenge of recalling thinkers. But from the first day onwards, if you don't make this book, you will never make this book. क्यों? बर्डन बढ़ता जाएगा। अरे यार 20 दिन के थिंकर्स लिखने हैं, अच्छा पता चला 70 थिंकर्स हो गए, छोड़ यार बाद में देखेंगे। और कई लोग बहुत खूबसूरती से एक शॉर्टकट अपनाओगे, अरे काम कर, हम 3 फ्रेंड ने लिया हुआ है, तू बना ले, हम लोग जेरोक्स कर लेंगे। तो लेट्स बी वेरी क्लियर, वो चीज उसी को काम आने वाली है। एग्जाम्पल, मैंने मेरे टीचिंग करियर में एक चीज नोट की, कई चीजें जैसे एथिक्स हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोसाइटी हो गया, मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर बैठ के खुद एनालाइज किए हैं, चाहे सोशियोलॉजी हो गया फॉर दैट मैटर। उनको सब टॉपिक वाइज डिवाइड किया, थीम के बेसिस पे अंडरस्टैंड किया, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स पढ़ाता था जीएस का एक टाइम पे, ऑल्दो नाउ आई डोंट टेक एनी जीएस सब्जेक्ट्स। वो एनालिसिस आज भी याद है मुझे, वो पैटर्न आज भी याद है। लेकिन वहीं पे अगर मैं देखूं कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का देखें, तो सही पैटर्न क्या चल रहा है, किसी के डाउनलोड कर लिए, वो देखा, वो कुछ नहीं याद रहता है, बिकॉज मैंने एफर्ट नहीं मारा। तो एक चीज कही जाती है, यू ओनली रिमेंबर दोज बुक्स एंड कंटेंट with which you have struggled। जब खुद बैठ के स्ट्रगल करोगे इस किताब के साथ, बनाओगे, मेहनत करोगे, निखारोगे, तो याद रहेगा। जेरोक्स आप कराते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उस चीज में से एक कण भी नहीं निकाल पाओगे। आगे जितने शॉर्टकट लेना वो आपकी पर्सनल रिस्क पे लेना, मेरे पास कोई शॉर्टकट्स नहीं होंगे। ये किताब अगर बनाई, सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज खत्म हो गया, और साथ ही साथ में इंटरकनेक्शंस करना पहले दिन से सीखने लगोगे। जैसे जैसे बिल्ड होगा वैसे वैसे आपको कनेक्शन समझ में आने लगेंगे। लास्ट में आप कुछ रफ शीट्स रखेंगे टेबल पे, जब आप शीट्स या बुक जैसे लगे आपको सही, जब क्लास ले रहे हैं तो कुछ सुन रहे हैं, कुछ डायग्राम में बना रहा हूं, ऐसे ही देखते देखते सिर्फ रफली बनाते चले जाओ, उसकी एक अलग सी चीज रखो ताकि माइंड और हैंड कोऑर्डिनेट करे आपका। ऐसा माना जाता है जब पढ़ाई में मल्टीपल सेंसेस यूज किए जाते हैं ना, वो कंटेंट याद रहता है। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ देख रहे होते हैं तो एक ही सेंस इन्वॉल्व है, कई बार देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, 3 सेंसेस इन्वॉल्व है। सेंसेस इन द सेंस आई एम टेकिंग द वर्क ऑफ हैंड एज वेल एज अ सेंस हियर, टच। अब ये तीनों सेंसेस आपको ज्यादा बेहतर क्लैरिटी देते हैं व्हेन कंपेयर टू सिर्फ, जैसे फॉर एग्जांपल आज एक टेस्ट कर लेना, कोई ऑडियो सुनो आप, जैसे कई ऑडियो बुक्स होती है, सुनते सुनते नींद आने लग जाती है क्योंकि उस लेवल के फोकस नहीं होता, लेकिन वही सुनते सुनते पेपर लेके बैठे हो तो बहुत अच्छे से समझ में आती है वो चीज। सो कीप सम रफ शीट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि जो चल रहा है उसको थोड़ा सा रफली हम समझते रहेंगे, हाथ से नोट्स बनाने के लिए नहीं, बट फॉर आवर बेटर रिकॉलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटीज। So from Monday onwards, you should definitely have syllabus copy, PYQ copy, thinker's diary, and then you start your class from Monday.
So these are the basic things which you need to have. Second, pedagogy क्लास की बड़ी सिंपल रही है पिछले 3 सालों में. पूरी क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे ऑनलाइन, एक स्टूडेंट को अनम्यूट कर दिया जाता है. अब कई बार मैं चेंज भी करता हूं, 2 3 एक को अनम्यूट, क्योंकि एट ए टाइम एक ही बंदा अनम्यूट होता है इसके अंदर सिस्टम में. वो बंदा अनम्यूट रहता है और हम इंटरेक्टिव तरीके से क्लास करते हैं. अभी क्या है, मैं सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये चीज. नॉर्मल क्लास में एक बच्चा अनम्यूट रहेगा, हम डिस्कस करेंगे चीजें और उसके बेसिस में आपको सवाल भी पूछूंगा, आप अपने जवाब भी देंगे. और ये पर्सन जो चैट्स में भी किसी के कोई सीरियस डाउट्स आता है तो वो भी बताता था, सर फॉर एग्जांपल हर्ष का ये डाउट आया हुआ है. तो दिस इज हाउ इट हैपेंस. मेक श्योर ऐसा नहीं है हर मैं 5 मिनट में ये चेंज करते रहूंगा. फॉर अनम्यूटिंग वन पर्सन इट टेक्स मी 10 seconds. सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन म्यूटिंग एंड अनम्यूटिंग. कई बार लोकल नेटवर्क इश्यूज होते हैं, कई बार आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइज होगा, इट विल बिकम ए न्यूसेंस फॉर ऑल ऑफ अस. सो ये कोई डिस्क्रिमिनेशन मत समझना. जिस बच्चे का वॉइस मुझे क्लियर लगता है, क्योंकि जब अनम्यूट करके देखते रहते हैं तो पता चल जाता है कि यार हर्ष का वॉइस सही आ रहा है क्या, इसका सही आ रहा है क्या, उसका सही आ रहा है क्या. और फिर मेरा कॉन्स्टेंटली ऑटोमेटिकली टिल्ट रहता है कि यार जिसका वॉइस क्लीन आ रहा है ताकि बच्चों को भी हेल्प हो और मुझे भी सुनाई दे. वन पर्सन वुड रिमेन अनम्यूटेड. यू कैन रेज योर हैंड एज वेल. अब हैंड रेज का ऑप्शन अगर आप iOS से देख रहे हो या मैक से देख रहे हो, मतलब एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में किसी में भी देखो, एप्पल के अंदर अगर ऐप के थ्रू क्लास ले रहे हो तो हैंड रेज का ऑप्शन नहीं आएगा. तो सर क्या किया जाए, मेरे पास एंड्रॉइड नहीं है. आप अगर एप्पल के किसी प्लेटफॉर्म से देख रहे हो तो वेब के अंदर जाओ, सफारी में जाओ, स्टडी आईक्यू में लॉगिन करो और वहां से क्लास स्टार्ट करो. तो आपको हैंड रेज का ऑप्शन आएगा. यहां से मैं अनम्यूट कर दूंगा, आपको मुझे दिखाई दे देगा somebody has raised the hand. लेकिन एंड्रॉइड या विंडोज से कर रहे हो तो गो अहेड, वो ऐप और वेब दोनों में है ऑप्शन. तो मेक श्योर दिस इज इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली एंड स्ट्रिक्टली फॉर दोज पीपल हु आर वॉचिंग थ्रू एप्पल सिस्टम्स. एप्पल के अंदर ऐप के अंदर हैंड रेज नहीं आएगा. वेब के अंदर लॉगिन करके देखोगे आ जाएगा. फिर भी सर मैंने वेब से लॉगिन कर रखा है, हैंड रेज नहीं आ रहा है, तो पहली चीज की जाती है इस मामले में, रिफ्रेश करके रीजॉइन करो. 99% बच्चों को वो हैंड रेज आ जाता है. फिर भी सर अगर नहीं आए तो आप मुझे अपना नाम, नेम, मेल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैसेज कि आप क्या इशू फेस कर रहे हैं भेज दें. मैं बैकएंड को भेजूंगा, वो एक दिन में प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट कर देंगे. आई होप दिस इज क्लियर. अब नेक्स्ट चीज एंड द लास्ट वन, अच्छा एक ही है ये तो, सॉरी. ठीक है, इंस्टाग्राम वाला फिलहाल मुझे नहीं मिल रहा है. यू पीपल कैन ड्रॉप मी अ मैसेज हियर इटसेल्फ. आपका सॉरी, हमारे सोशियोलॉजी पेड स्टूडेंट के लिए एक अलग सा चैनल है स्टडी आईक्यू का. ये मेरा पर्सनल आईडी है. आप इस आईडी के अंदर मैसेज करेंगे अपना नाम, आप लिखोगे सेंड द लिंक तो कुछ नहीं मिलेगा आपको. मैं नहीं एंटरटेन करूंगा. ऐसे क्या सेंड द लिंक, ये क्या है. आपका नाम, आपका बैच कौन सा है, आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी जो स्टडी आईक्यू में रजिस्टर्ड है, ये सेंड करेंगे इस पर्टिकुलर के अंदर एंड विथ एन मैसेज कि क्या चीज के लिए सेंड कर रहे हो. टेलीग्राम लिंक, ऑफिशियल सोशियोलॉजी स्टडी आईक्यू चैनल, ये 4 चीजें लिख के मुझे भेजेंगे इस आईडी पे. मैं आपको स्टडी आईक्यू का जो ऑफिशियल चैनल है जहां पे मैं कुछ आर्टिकल्स भेजता हूँ या कुछ चीजें मुझे भेजनी है या कभी कोई क्लास की इंफॉर्मेशन है, मान लो कभी लाइट चली गई तो इंफॉर्मेशन के लिए, कभी क्लास नहीं है सपोज उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, कुछ भी रिलेटेड, कंटेंट रिलेटेड और एनीथिंग एल्स, इस ग्रुप के अंदर सारी चीजें भेजी जाती है. आप मुझे पर्सनली मेरे इस हैंडल के अंदर ये 4 चीजें मेंशन कर दें, आपका नाम, आपका बैच, आपका मैसेज, जिसमें ये होना चाहिए प्लीज प्रोवाइड मी द लिंक ऑफ स्टडी आईक्यू ऑफिशियल सोशियोलॉजी स्टडी आईक्यू ऑफिशियल
टेलीग्राम और बैच मेल और नंबर एंड आई विल सेंड यू द लिंक. चाहो तो स्क्रीनशॉट तो आएगा नहीं शायद, आप एक फोटो ले सकते हो और उसके बेसिस पे ये 4 चीजें मुझे मैसेज कर दें. आई विल सेंड यू द लिंक. बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक यू विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस चैनल, जो हमारे सारे सोशियोलॉजी पेड स्टूडेंट्स का है. So I hope the things are utterly clear to every bacha of mine here. I wish you all the best for the journey, and don't worry, the journey is going to be mesmerizing next 6 months where your perspectives would change. दायरे, नजरिए, depth, width सारी बदलेगी. Enjoy the journey, enjoy the process, and I will see you on Monday sharp at 12. And we start with the first class of sociology. Those people who have not seen the orientation sessions, I recommend strictly to see this orientation session so that you get all the basic relevant information with respect to this. So God bless you all. Thank you for listening to me with such high degree of humility. I boast the godliness in all of you. Thank you. I'll see you on Monday. Take care. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.